Hello students, let's start our new chapter. This is chapter number 7, Ria's train got late, part 1. This is chapter number 7, Ria's train got late. Okay, so let's start our chapter. I'm going to read it first and then explain you. Okay, it's a date 29th of May. Time is 5 a.m. Okay, I woke up. Our train halted at some platform. I sat and looked outside from the window. There was a clock hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning. Besides it, on the pillar, Vadodara Junction was written in the circled board. My brother was still sleeping. I means who? I means Ria. रिया वोकअप एट 5 o'clock, है ना, जहाँ पे ट्रेन जो है वो हॉल्ट की थी एक प्लेटफॉर्म में। वो प्लेटफॉर्म था वडोदरा, वडोदरा प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेकिन तो भी रिया का जो ब्रदर है वो सोया हुआ ही था। There was an instruction on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. Father said, brush your teeth. Meanwhile, I am getting tea for you. We completed all morning activities. At that time, father came with tea and mother took out thepla, khakra and biscuits for breakfast. When we completed our breakfast, it was daytime. Still, there was time for the train to start. Father said, come, I will show you the facilities of the railway station. My brother and I got off from the train. That means जो ट्रेन जो थी वो ट्रेन 2 आवर्स लेट थी। जो वडोदरा के लिए जो ट्रेन थी वो 2 आवर्स लेट थी। तब जो रिया थे, रिया के फादर ने बोला कि आप जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होता है वो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके आप ब्रेकफास्ट भी अपना कंप्लीट कर लीजिए, राइट। तो उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर दिया। देन तो भी ट्रेन छूटने के लिए काफ़ी वक्त था। सो फादर ने रिया एंड रिया के ब्रदर को बोला कि चलो जो रेलवे स्टेशन पे जो भी फैसिलिटीज़ होती है दैट आई विल शो शो इट टू यू। Then my brother and I, that means Ria and Ria's brother, got off from the train to see the facilities of the railway station. Father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet, bathroom, facility of drinking water, canteen, etc. on the platform. We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing one platform to another. इवन उन्होंने ट्रेन्स भी देखे, जो स्टेशन पे अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेन्स आती है वो ट्रेन्स भी देखे उन्होंने क्रॉसिंग करते वक्त प्लेटफॉर्म को। We saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train. Some sweepers were cleaning the railway tracks. We had no idea how time flew during our visit the station. I came to know more about railway facilities. Indeed, it was enjoyable. I took photographs and videos of some facilities from my father's mobile. Understood? Now here are some questions जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। लेट्स सी। नंबर 1, थिंक व्हाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 आवर्स लेट फ्रॉम वडोदरा। यानी रिया की जो ट्रेन थी वो वडोदरा से 2 आवर्स लेट क्यों थी। सो द रीजंस आर नॉट मेंशन हियर एक्चुअली। तो बाकी वेरियस रीजंस हो सकते हैं जिससे ट्रेन लेट हो सकती है। सो द आंसर इज सम ऑफ द रीजंस that Ria's train be 2 hours late from Vadodara is due to signal failure of the network.
infrastructure problems, people or objects on the tracks, medical incidents and occasionally the weather etc. यानी कि रीजंस ये हो सकते हैं कि जैसे सिग्नल फेलियर होता है, नेटवर्क का सिग्नल फेलियर होने के कारण भी लेट होती है ट्रेन, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होता है, या फिर कोई पीपल्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें या एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रैक के ऊपर आ जाती है, या फिर मेडिकल इंसिडेंट्स कुछ होता है, मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसी स्टेशन पे रुक जाना पड़ता है तो नेक्स्ट स्टेशन आते आते लेट होता है ना, या फिर ओकेजनली मोस्ट ऑफ द वेदर के कारण भी ये जो ट्रेन है वो लेट हो सकती है. सो इसमें से कोई एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण रिया की जो ट्रेन थी वो 2 आवर्स लेट थी वडोदरा से. ओके. नाउ नंबर 2, विच प्लेसेस डिड रिया विजिट एट द स्टेशन. स्टेशन पे रिया ने कौन से प्लेसेस पे विजिट किया. आंसर इज रिया विजिटेड टिकट विंडो, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet, bathroom, canteen, etc. places at the station. Now अगेन जो 29 मई के 7 o'clock बजे हुए थे, ये तो सारा था वो 5 o'clock एंड 7 o'clock के बीच में का जो टाइम था, उसमें क्या क्या चीज़ें रिया के साथ हुई, रिया ने क्या क्या किया. ओके. नाउ लेटर ऑन 7 a.m. अब तब क्या हुआ हम लोग देखते हैं. नाउ देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट अवर ट्रेन वुड लीव वडोदरा within 2 minutes. We got into our carriage. Train started. It was morning. Atmosphere was very beautiful outside. यानी अनाउंसमेंट जब हुई कि 2 मिनट में ही वडोदरा ट्रेन जो है वो निकलेगी, तो ये लोग अपनी ट्रेन में फिर से वापस आ गए एंड ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई. तो ऑब्वियसली इट वाज मॉर्निंग, 7 o'clock हुए थे मॉर्निंग के, है ना, 7 a.m. तो एटमॉस्फेयर वाज वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड. Our train was passing level crossing where people were waiting on both the sides of crossing for the train to pass. Their buses, cars, auto rickshaws, cycle, scooter and goods trucks etc. vehicles were waiting. Some people did not switch off the engine of their vehicle. Due to this, there was a lot of smoke and noise in the atmosphere. Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is. यानी जब ट्रेन स्टार्ट हो गई, उसके बाद में थोड़ी देर बाद ट्रेन जो है वो लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस हुई. ठीक है, लेवल क्रॉसिंग दैट मीन्स वो लेवल क्रॉसिंग जहाँ हम लोग जनरली अगर जाते रहते हैं और बीच में रेलवे क्रॉसिंग आता है, ठीक है, दैट इज़ द लेवल क्रॉसिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं, है ना. तो सेम वैसे ही जब रिया की ट्रेन वहाँ से पास हो रही थी रेलवे क्रॉसिंग से, तो वहाँ पे उसने क्या देखा, बहुत सारे लोग जो है वो रेलवे क्रॉसिंग के दोनों साइड में वेट कर रहे थे. तो उसमें उसने कौन से व्हीकल्स देखी, मेनी व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, गुड्स ट्रक्स एक्सेट्रा जो कि खड़ी थी. कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो जो व्हीकल्स होते हैं वो उसका इंजन स्टार्ट ही रखते हैं. तो उसके कारण क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर में स्मोक एंड नॉइज़ पोल्यूशन तो होता ही है, ठीक है, जिसके कारण तबीयत भी खराब होती है एंड पोल्यूशन भी खराब होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो रेलवे क्रॉसिंग के लिए जो बार होता है वो बार के नीचे से उसको क्रॉस करते हैं या फिर उसके पास में जाके खड़े हो जाते हैं. तो ये कितना डेंजर है, काफ़ी डेंजर है, आपने भी देखा होगा. ओके. तो ऐसे हमें करना नहीं है. रेलवे क्रॉसिंग का जो सिग्नल है वो उसको फॉलो करना है हमें, और वहीं पे खड़े रहना है जब तक कि ट्रेन क्रॉस ना हो. At the same time, our train crossed another train. Himaksh and I tried to count the carriages of one such train, but both trains were going very fast, so we could not count the
carriages. यानी एट अ टाइम क्या होता है समटाइम्स, जैसे हमारी ट्रेन जाते रहती है तो वैसे ही दूसरी ट्रेन भी हमें क्रॉस कर देती है, वहाँ से चली जाती है। तो रिया एंड रिया के भाई ने यानी हिमाक्ष ने क्या सोचा कि हम लोग जो ट्रेन के जो दूसरी ट्रेन पास हो रही थी वो ट्रेन के कैरेजेस उन्होंने काउंट करने की कोशिश की, बट वो उसको काउंट कर नहीं पाए क्योंकि दोनों ट्रेन इतनी फास्ट थी कि वो काउंट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चंस आर हियर, तो जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड आपको आंसर भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फर्स्ट इज, डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग? इफ यस, think and write the situation you faced when the railway crossing was closed and when when it opened. So answer is, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपने कभी रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस की है, और अगर की है तो जब रेलवे का क्रॉसिंग बंद होता है तो क्या सिचुएशन होती है, आप वहाँ क्या देखते हो, और जब वो खुल जाती है तो फिर क्या सीन होता है। सो द आंसर इज यस, व्हेन द रेलवे क्रॉसिंग वाज क्लोज्ड द पीपल वेयर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग. There were lots of air and noise pollution in the atmosphere due to what? Due to that vehicle engine, vehicle engine are start, है ना, दैट्स वाई वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में नॉइज एंड एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड व्हेन द रेलवे क्रॉसिंग इज ओपन पीपल वे आर डूइंग रश टू गो. और जब रेलवे क्रॉसिंग जो है वो सिग्नल ओपन हो जाता है तो क्या होता है, बोथ साइडेड जो व्हीकल्स होती है वो बहुत जल्दी में होती है, बहुत क्रॉस करने के लिए रश करती है ना. देन नेक्स्ट इज, व्हाट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग? क्रॉसिंग पे रिया ने क्या देखा? सो द आंसर इज, रिया सॉ मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द क्रॉसिंग लाइक बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर एंड goods trucks etc at the crossing. Okay, later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of the moving train changed. Khud, khud, khud. I opened my eyes. Guess what I saw? My train was crossing over a big river on a very long bridge. Mother said it is a bridge of Narmada River. This is the biggest river of Gujarat. Its water is given to far away area through canal. यानी उसके बाद क्या हुआ, जब रेलवे क्रॉसिंग से वो जब लेवल क्रॉसिंग से वो गुजरे, उसके बाद कुछ देर के बाद जो रिया थी वो रिया विंडो के पास अपने आईज बंद करके बैठी थी, तो सडनली उसको जो खट खट खुट खुट ऐसे जो आवाज़ आता है जब हम लोग ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो उसने ओपन आईज ओपन करके देखा तो उसे क्या दिखा, बहुत बड़ा एक ब्रिज था और उसके नीचे बहुत बड़ी रिवर थी. तो मदर दैट टाइम मदर सेड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर. ये जो ब्रिज था वो था नर्मदा रिवर का ब्रिज, जो कि गुजरात का सबसे बिगेस्ट रिवर है नर्मदा रिवर, और सबसे बड़ा ब्रिज भी है. ठीक है, जिसे हम गोल्डन ब्रिज भी बोलते हैं. आप कभी अगर अंकलेश्वर टू भरूच के रास्ते में ये ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करते हुए, ये नर्मदा रिवर को क्रॉस करते हुए ये गोल्डन ब्रिज होता है. तो आप कभी जाओगे तो देखिएगा, है ना. और इसका ये जो नर्मदा रिवर का जो वाटर है वो काफ़ी सारे एरिया में थ्रू कैनल पास आउट होता है, जिसको लोग यूज़ भी करते हैं. ठीक है, आफ्टर अ वाइल अनदर 2 ब्रिजेस वेयर सीन. स्मॉल व्हीकल्स वेयर पासिंग थ्रू इट. फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज. इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज. द अनदर ब्रिज beside it is built over river Narmada. It is known as the biggest cable bridge of India.
ओके, ये जो गोल्डन ब्रिज है, ये गोल्डन ब्रिज काफ़ी पुराना है। वो करीब ईयर 1881 में बनाया गया है, जो कि ब्रिटिश ने बनाया हुआ है। लेकिन वो काफ़ी ओल्ड हो गया, तो उसके ही बिल्कुल पैरेलल में एक दूसरा ब्रिज बनाया है, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर से नर्मदा रिवर को क्रॉस करके गया है, जिसको नाम दिया है केबल ब्रिज, जो कि सबसे बिगेस्ट ब्रिज है इंडिया का। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपके दिख भी रहा होगा, जो पहला वाला ब्रिज है दैट इज़ द गोल्डन ब्रिज, जो कि बहुत पहले का है, जो ब्रिटिश ने बनाया है। और उसके ही पैरेलल दूसरा ब्रिज बनाया है, दैट इज़ केबल ब्रिज। ओके, though it is summer, the river was full of water. Some fishermen were seen spreading net sailing in their boat. The bridge was long, so we enjoyed watching surroundings. Father said our train passed through the bridges of Sabarmati, Vatrak, Mahisagar, and Vishwamitri. While you both were sleeping, now bridge of Tapi River near Surat will come. Don't miss it. Don't miss to see it. Then ये जो केबल ब्रिज गोल्डन ब्रिज क्रॉस करने के बाद में, दो इट इज़ समर, वो समर का सीज़न था, ठीक है। समर में ऑब्वियसली रिवर जो होता है वो फुल ऑफ वाटर होता है। तो वहाँ पे रिया एंड हिमाक्ष ने क्या देखा कि जो फिशरमैन है वो फिशरमैन अपनी बोट से जो सेलिंग स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट, वो नेट स्प्रेड करते हैं, ठीक है। क्यों? तो फिश पकड़ने के लिए। और ब्रिज वॉज लॉन्ग, वो ब्रिज काफ़ी लॉन्ग था, तो उन्हें वो ब्रिज क्रॉस करते करते रिवर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिशरमैन क्या कर रहा है, वो देखने में बहुत उनको मज़ा आया। देन दैट टाइम फादर सेड हमारी जो ट्रेन है वो काफ़ी ब्रिजेस को पार मीन क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। जैसे कि साबरमती ब्रिज था, वत्रक, देन महिसागर, देन विश्वामित्री, ये जो सारे ब्रिज थे वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिए थे। लेकिन तब आप दोनों भी सोए हुए थे। अभी जो ब्रिज आने वाला है वो है तापी रिवर, ठीक है। तापी रिवर जो है वो तापी रिवर नियर सूरत है, तो वो अभी आने वाला है। तो आप ये जो तापी रिवर है उसको देखने के लिए, वो ब्रिज देखने के लिए भी आप मिस करोगे नहीं। It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near riverbank area. In some field there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. I had never experienced this type of cool breeze in Gandhidham. We were busy in observing the scenes when mamas called on my mother's mobile. Mamas called on my mother's mobile. He was coming to the railway station to pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late and we will reach at 10:25 instead of 8:25. जब उन लोगों ने जब वो रिवर्स क्रॉस कर लिए, देन आफ्टर इट वाज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज। तब उन्होंने जब विंडो के बाहर जो पूरे सीन वो देख रहे थे वो काफ़ी प्लेजेंट थे, काफ़ी मज़ेदार थे, बहुत अच्छे थे जो विंडोज से वो सीन देख रहे थे। क्योंकि वहाँ जो रिवर के बैंक ऑफ रिवर जो काफ़ी आजू बाजू में जो ऑब्वियसली ट्रीज़ होंगे वो काफ़ी ग्रीन ग्रीन ट्रीज़ थे, तो वो देखने में बहुत मज़ा आया उन उन लोगों को। और इन सम फील्ड देयर वॉज फार्मिंग ऑफ बनानास, कुछ कुछ जो फील्ड थे वहाँ पे बनानास का फार्मिंग उन्होंने देखा, है ना। ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड। द ब्रीज वॉज वेरी कूल, यानी जो वहाँ पे ब्रीज चल रही थी, जो हवा चल रही थी वो बहुत कूल थी, ठीक है। जो ठंडा ऐसे हमें प्लेजेंट फील करवाता है, वैसे ब्रीज चल रही थी।
रिया उसके ऊपर बोलती है कि मैंने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था, ये कूल ब्रीज का एक्सपीरियंस जो है मैंने वो कभी गांधीधाम में लिया नहीं था. सो वी वेयर busy in observing the scenes when mama is called on my mother's mobile. जब ये हम लोग सीन देखने में बहुत बिजी थे तब मेरे मम्मी के मोबाइल के ऊपर मामा का फ़ोन आया. ठीक है. और तब मेरी मम्मी ने उन्हें बोला कि हमारी जो ट्रेन है वो 2 आवर्स लेट थी, जो कि 8:25 को अराइव करने वाली थी. ठीक है, 8:25 को पहुंचने वाली थी, लेकिन वो अभी पहुंचेगी 10:25. तो मामा जो थे, रिया के मामा, उन लोगों को स्टेशन पे पिक करने आने वाले थे. तो मम्मा ने उनको टाइमिंग बताया कि हम 8:25 को वहाँ पे रीच नहीं होंगे, हम होंगे 10:25 को. ओके. सो हियर आर अगेन सम क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने. उसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस है. लेट्स सी. हैव यू सीन एनी ब्रिज विच, यानी कभी आपने कोई ब्रिज देखा हुआ है. सो आंसर इज यस, आई हैव सीन मेनी ब्रिजेस लाइक द हावड़ा ब्रिज, द गोल्डन ब्रिज, एक्सेट्रा. अब यहाँ पे मैंने जो ब्रिज मैंने देखे हैं वो उसका नाम मैंने लिखा है. तो ऑब्वियसली अगर आप आपके मन से भी लिखना चाहो कि आपने कौन से ब्रिज देखे हुए, तो आप उनका नाम यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. फाइन. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर्स आर देयर इन योर एरिया. थिंक एंड राइट ओवर दैट रिवर एट विच प्लेसेस द ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट. यानी आपने विच रिवर्स आर देयर इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन से ब्रिज है. ठीक है, और उसके ऊपर जो रिवर है वो कौन से प्लेस पे है, और वहाँ पे कौन सा नाम का ब्रिज बना हुआ है, ये आपको लिखना है. सो आंसर में मैंने लिखा है नर्मदा रिवर इज़ देयर इन माई एरिया. ओवर दैट रिवर द गोल्डन ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट. इट कनेक्ट्स अंकलेश्वर टू भरूच इन द गुजरात स्टेट. ओके. मैंने यहाँ पे लिखा है कि नर्मदा रिवर जो है वो मैंने देखा हुआ है, वो मेरे एरिया में है, जिसके ऊपर गोल्डन ब्रिज बना हुआ है. ठीक है, लेकिन अभी गोल्डन ब्रिज के ही पैरेलल एक दूसरा केबल ब्रिज बना हुआ है ना. बड़ा सा केबल ब्रिज बना हुआ है, लेकिन पहले तो गोल्डन ब्रिज ही था. ठीक है, जो किसको कनेक्ट करता है, अंकलेश्वर टू भरूच जो है उसको कनेक्ट करता है, एंड वो है गुजरात स्टेट में. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड राइट व्हाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर रिवर. यानी आपको क्या लगता है ये जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर क्यों बने हुए हैं. सो द आंसर इज ब्रिजेस आर मेड टू हेल्प पीपल क्रॉस द रिवर्स इजीली. क्योंकि रिवर कितना बड़ा होता है, रिवर को क्रॉस इजीली क्रॉस करने के लिए, और लोगों को रिवर इजीली क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज बनाए होते हैं, है ना. और ये जो ब्रिज होता है ये शॉर्टकट भी होते हैं, है ना. इतनी बड़ी रिवर कहाँ से आप घूम के आओगे रोड के ऊपर से. तो ब्रिज जो है वो ब्रिज ओवर के एग्जैक्ट ऊपर होती है, तो जिससे आप इजीली और कम समय में उसको क्रॉस कर सकते हो. ओके. सो हियर इज अवर chapter number 7 part 1 is completed. some question are here, एंड जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं. तो आपको एज अ होमवर्क क्या करना है, आपको ये जो पार्ट 1 जहाँ तक के मैंने आज पढ़ाया हुआ है उसको आपको रीड करना है, एंड ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको आपको लर्न करना है. ओके. सो होप सो you all are understood. So in next lecture we will see our part 2. Till then, take care. Bye bye.